मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे एचपी बोर्ड के क्लास 12 के केमिस्ट्री का सेकेंड सैम्पल पेपर सॉल्व। सो लेट अस बिगिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस? सो मोलैलिटी हैज यूनिट्स मोल पर केजी, मोलैरिटी मोल पर लिटर, मोल फ्रैक्शन moles upon moles means no units, so answer is mole fraction. The unit of cell constant is L upon A. So length upon area means centimeter upon centimeter squared. So this comes out to be centimeter inverse. So option D is the correct answer. If the conductivity and conductance of a solution is same, then its cell constant is equal to, so we have conductance is equal to conductivity kappa into L upon A. So if this is equal, then conductance divided by conductivity will cancel out and answer will be 1. So cell constant is unity 1. Which of the following statement is false? So oxidation and reduction of reactions occur at electrodes in electrochemical cells. That is true. All voltaic cells involve the use of electricity. No. Voltaic cells produce electricity by carrying out chemical reactions. So this option is false. Reduction does occur at the cathode and oxidation occurs at the anode. Which of the following amines give carbylamine reaction? So carbylamine is given, reaction is given by primary amines. So out of the 4, ethylamine is primary amine, this is secondary amine, this is tertiary amine, and this is also secondary amine. Which does not belong to second transition series? So yttrium, cadmium and technetium belong to second transition series. Copper belongs to first transition series. A primary alkyl halide would prefer to undergo nucleophilic substitution reaction by molecular SN2 reaction. Oxalic acid is COH, तो दो कार्बन का दो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कंपाउंड होगा ethene 1,2-dioic acid. This is the IUPAC name. Now we have ethanol and benzyl C6H5CH2CHO. इनको डिस्टिंग्विश करना है तो इसमें अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, जबकि यहाँ अल्फा पे मेथिलीन ग्रुप लगा है. तो अल्फा मिथाइल ग्रुप कैन बी डिटेक्टेड बाय आइडोफॉर्म टेस्ट. सो आंसर इज ऑप्शन बी, आइडोफॉर्म टेस्ट. ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा लेकिन ये नहीं देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 liters of 0.02 molar aqueous solution of NaCl was diluted by adding 1 liter of water. तो 4 लीटर में 1 लीटर डाल दिया तो सेकेंड वॉल्यूम हो गई 5 लीटर. तो मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे M1V1 = M2V2. पहले केस में मोलैरिटी है 0.02 और वॉल्यूम है 4 लीटर. दूसरे केस में मोलैरिटी M2 और वॉल्यूम हो जाएगी 5 लीटर्स. सो M2 विल बी 0.02 into 4/5, which comes out to be, this is 8/5, so this comes out to be 0.016. This is the molarity. Now assertion A is acetic acid is weaker acid than propanoic acid. This is not correct due to plus I effect of methyl alcohol. So what we see is कि जैसे जैसे आपका मिथाइल अल्काइल ग्रुप बड़ा होता जाता है एसिड वीक हो जाता है. तो एसिटिक एसिड तो स्ट्रॉन्गर एसिड है इससे, तो असर्शन ये तो गलत है. प्लस आई इफेक्ट मिथाइल ग्रुप का होता है, लेकिन इसमें इस ग्रुप में भी अल्काइल ग्रुप में भी है. सो असर्शन ए इज फॉल्स एंड रीजन आर इज ट्रू. प्लस आई इफेक्ट तो होता है मिथाइल ग्रुप का. ऑप्शन डी को हम करेक्ट चॉइस चूज कर सकते हैं. असर्शन ए, पैरानाइट्रोफिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल. intermolecular
intramolecular hydrogen bonding makes ortho isomer weaker than para isomer. Assertion A is correct. Reason R is also true, and reason R is the correct explanation of assertion A. Now, the next question is calculate the EMF of cell at 25 degrees centigrade. Zinc into zincines with concentration 0.01 molar and ferrocines are dipped in. Ferrocines contain ferrous iron concentration 0.005. तो E सेल E नॉट सेल आ जाएगा कैथोड माइनस एनोड, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आयरन का 0.44 माइनस 0.44 माइनस 0.763. ये सॉल्व करके हमारे पास आ गया 0.323. अब नर्न्स्ट इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ एनोड आयंस अपॉन कैथोड आयंस. तो ये हमने निकाल लिया 0.323 और n की वैल्यू 2 आएगी. सो 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ 0.01 अपॉन 0.005. तो सॉल्व करने पे ही आता है log 2. log 2 होता है 0.3010. तो ये इनको मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड करके आंसर आता है 0.009. इसमें से इसको माइनस करके आंसर आता है 0.314 volts. Next is what is the effect of temperature upon the rate of chemical reactions? Explain how does a small rise in temperature appreciably increase the speed of many reactions. तो in general अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करता है, लेकिन स्मॉल राइज से काइनेटिक एनर्जी 2 to 3% ही इंक्रीज़ करती है. बट रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ इसलिए करता है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लोअर टेम्परेचर का पीक हायर होता है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी पोजेस करने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर जो है इतना है. लेकिन जब हम टेम्परेचर 10 डिग्री केल्विन से बढ़ा देते हैं तो ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग एनर्जी ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑलमोस्ट डबल हो जाता है. इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करता है. सो इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ many reactions due to increase in number of effective collisions, that is those collisions which result in the formation of products. So as the temperature is increased, the fraction of molecule possessing energy greater than threshold energy increases, and so the rate of reaction increases. Next question is define chelates and chelating ligands and give an example. So when a bidentate or a polydentate ligand is attached to attached by two or more donor atoms to the same central metal ion, they form a ring-like structure which is known as chelates. And the ligand which forms a ring-like structure is called chelating ligand. For example, in this complex, ethane 1,2-diamine is a chelating ligand, and this complex is a chelate complex. How will you show whether a given OH group is alcoholic or phenolic? So phenols को जब हम न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं तो वो वायलेट कलरेशन देते हैं, जबकि अल्कोहल्स ऐसा नहीं करते हैं. सो phenols plus ferric chloride will form ferric triphenoxide which is violet color. अल्कोहल के साथ ऐसा नहीं होता है, no reaction. Why is reactivity of all three classes of alcohols with concentrated HCl and anhydrous zinc chloride different? That is Lucas reagent. तो that is because ये जो डिफरेंट अल्कोहल्स हैं ये जब ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं तो ये अल्काइल हेलाइड्स बनाते हैं. अल्काइल हेलाइड्स इमिसिबल इन वाटर होते हैं, इसलिए टर्बिडिटी शो करते हैं. अब आउट ऑफ द थ्री जो टर्शरी अल्कोहल्स और टर्शरी क्लोराइड्स हैं वो टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए सबसे जल्दी बनते हैं और टर्बिडिटी इमीडिएटली आती है.
सो प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट करेगा टू फॉर्म एल्काइल हेलाइड, पहले कार्बोकैटायन बनाएगा और एल्काइल हेलाइड बनाएगा। अब ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होती है और प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है। दूसरे स्टेप में वो वाटर रिमूव होता है और कार्बोकैटायन बनता है। अब ये सेकेंड स्टेप स्लो है, फर्स्ट स्टेप फास्ट है। थर्ड स्टेप जिसमें कार्बोकैटायन और क्लोराइड आयन कंबाइन करते हैं, ये स्टेप भी फास्ट है। तो ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शरी कार्बोकैटायन, इसलिए सबसे ज़्यादा यही बनता है। और टर्शरी कार्बोकैटायन क्योंकि जल्दी बनता है तो टर्बिडिटी इमीडिएटली देता है। सो सेकेंड स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप एज इट इज स्लो, एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन विल डिटर्मिन द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कोहल्स। सो टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, फॉर्म्ड फास्टर, सो विल शो टर्बिडिटी इमीडिएटली। उसके मुकाबले में सेकेंडरी अल्कोहल टर्बिडिटी लेट शो करेगा और प्राइमरी अल्कोहल सबसे लेट शो करेगा। Now, how are aldehydes and ketones distinguished? तो हम वो aldehydes जो हैं ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और टॉलेंस रिएजेंट और जो फेलिंग सॉल्यूशन है इनको ईजिली रिड्यूस कर देते हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करेंगे तो एल्डिहाइड एक कार्बन लेस वाला एसिड सॉल्ट बनाएगा और साथ में सिल्वर का मिरर बनेगा। तो एल्डिहाइड्स ये टेस्ट देते हैं, कीटोन्स नहीं देते, तो हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसी तरह फेलिंग सॉल्यूशन में ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं एल्डिहाइड्स के साथ, लेकिन कीटोन्स के साथ नहीं बनते हैं। दीज आर द रिएक्शंस। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। तो एल्कीन में वाटर डालेंगे, पहले स्टेप में वाटर प्रोटॉन उठा के हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये हाइड्रोनियम आयन जो है डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अटैच होता है एंड एज अ रिज़ल्ट वाटर रिमूव हो जाता है और कार्बोकैटायन बनता है। सेकेंड स्टेप में इस कार्बोकैटायन में एक न्यूक्लियोफाइल वाटर ऐड अप हो जाएगी और जो है ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। थर्ड स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल अपना एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन लूज करके अल्कोहल बना देगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म। What is Zwitter ion? Give one example. So Zwitter ion is a dipolar ion which has a positive as well as negative end in the same molecule. For example, amino acid में अल्फा अमाइनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, एक NH2 ग्रुप होता है, लेकिन ये अपना जो प्रोटॉन है ये इंटरचेंज कर लेते हैं और इस तरह से NH2 से ये NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और ये नेगेटिव चार्ज एंड बन जाती है। So this end acts as a proton donor and this acts as a proton acceptor, and this kind of a dipolar ion with two different charges is known as a Zwitter ion. Which of the two, hexa aqua iron 3 or hexa cyanido iron 3, ferrate is an inner orbital complex? तो इन दोनों में से साइनाइड जो है ये जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है और पेयरिंग कॉज करता है। तो एज अ रिज़ल्ट इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो जाते हैं और इस तरह से अंदर के डी ऑर्बिटल्स के ही ऑर्बिटल्स जो हैं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बनाते हैं। सो साइनाइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इट कॉजेज पेयरिंग ऑफ electrons of d orbitals and make available to vacant d orbitals to form inner orbital complex. Water on the other hand is a weak field ligand and does not cause pairing. So here we can see that this is the outer inner two d orbitals participate to form an inner orbital complex. On the basis of valence bond theory, explain the geometry and magnetic behavior of hexafluoridoferrate 3. So hexafluoridoferrate 3 में आयन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और इसकी कन्फिग्रेशन है 3d5। अब फ्लोराइड एक वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग कॉज नहीं करता है, जिसकी वजह से आउटर 2d ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बनता है। 6 फ्लोराइड आयंस 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे टू फॉर्म एन ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स और इट इज़ एन आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। एंड क्योंकि
बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज़ हाईली पैरामैग्नेटिक इन नेचर. Explain the construction and working of lead storage battery with diagram. So lead storage cell में जो spongy lead है it acts as anode, और जो ये lead grid packed with lead dioxide है it acts as cathode, और electrolyte is sulfuric acid. कुछ समय के लिए lead plates को जब हम रखते हैं तो जो lead है ये इलेक्ट्रॉन्स देता है और एनोड की तरह एक्ट करता है. So reaction will be lead will give lead ions plus electrons. ये lead ion सल्फेट आयन से रिएक्ट करके lead सल्फेट बनाएंगे, और कैथोड पे lead डाइऑक्साइड इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड के H+ आयंस भी, और एज अ रिजल्ट lead आयंस बनाते हैं और वाटर साथ में प्रोड्यूस होता है. यहाँ भी lead आयंस जो हैं सल्फेट lead सल्फेट बना लेते हैं. तो विद टाइम ये इसकी टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि दोनों ही एनोड एंड कैथोड लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. इस टाइम पे हम कहते हैं कि हमारी लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो वीक हो गई है. इसको फिर रीचार्जिंग करते हैं. रीचार्जिंग में हम करंट पास थ्रू करते हैं और ऑपोजिट रिएक्शंस होते हैं, और एनोड फिर से लेड सल्फेट से लेड में कन्वर्ट हो जाता है, और कैथोड फिर से जो है लेड डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस इज़ the construction, working and diagram of a lead storage battery. How much charge is required for the reduction of 1 mole of copper ions to copper? So 1 mole of copper ions को copper में convert करने के लिए 2 moles of electron चाहिए. That is 1 mole of electron पे 1 Faraday charge होता है, तो 2 Faraday moles are required. तो coulombs में 2 into 96500 coulombs is equal to 193000 coulombs. 60% of a first order reaction was completed in 60 minutes. When was it half completed? So according to integrated rate equation, हमारे पास equation है k is equal to 2.303 upon t log a naught upon a. तो अगर initial concentration 100 है तो 60% जब complete होगा तो concentration हो जाएगी 100 minus 60. वैल्यूज़ डालने पर k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग 100 अपॉन 40 आ गया, या 2.303 अपॉन 60 लॉग 10 अपॉन 4. तो लॉग 10 होता है 1 और लॉग 4 होगा 2 इंटू 0.3010 दैट इज़ 0.6020. माइनस करने पे हमारे पास 3980 आ रहा है. इसको हमने यहाँ पुट कर दिया और इस तरह से हमारे पास k आ गया. k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू 0.3980. टी हाफ होता है 0.693 अपॉन के. तो के की वैल्यू हमने निकाली है 2.303 अपॉन 60 इंटू 0.3980. उसको डालने पर और कैंसिल आउट करने पर हाँ हमारे पास टी हाफ आता है 45 मिनट्स. हाउ डज फिनोल रिएक्ट विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड? तो ये कपलिंग रिएक्शन होता है और अल्फा हाइड्रोक्सी पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है. दिस इज येलो डाई. देन फिनोल को जब जिंक डस्ट से रिएक्ट करते हैं तो इट लूजेज इट्स ऑक्सीजन टू फॉर्म बेंजीन, और इसी तरह फिनोल को जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाते हैं तो ये एसिटाइलेशन हो जाती है और ये एसिटाइल फिनॉक्साइड बन जाता है. एसिटिक एसिड साथ में बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है. How do you explain the amphoteric behavior of amino acids? So amino acids में एक COH ग्रुप और एक NH2 ग्रुप होता है जो आयंस एक्सचेंज करके ज्विटर आयन की तरह एक्ट करते हैं. NH3 पॉजिटिव और CO नेगेटिव. ये जो है इसका जो डाइपोलर कैरेक्टर है इसकी वजह से NH3 पॉजिटिव ग्रुप एसिड की तरह बिहेव करेगा और CO नेगेटिव बेस की तरह बिहेव करेगा. सो विद बेस जो है ये NH2CHR CO नेगेटिव बनेगा एंड विद एसिड जो है यहाँ H ग्रुप अटैच हो जाएगा, यहाँ H ग्रुप अटैच हो जाएगा. इस तरह से एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्ट करता है, इसलिए इट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर. वाई आर वाइटामिन A एंड वाइटामिन C एसेंशियल टू अस? क्योंकि दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी. इनकी डेफिशिएंसी से डिजीजेज हो जाती हैं और इनके इंपॉर्टेंट सोर्सेज भी हमें बताने हैं. सो वाइटामिन A
जो है अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ज़ीरोफ्थल्मिया या नाइट ब्लाइंडनेस जैसी डिजीज़ेस हो सकती हैं। विटामिन ए हमें फिश लिवर ऑयल, कैरेट, बटर, मिल्क एक्सेट्रा से मिलता है। विटामिन सी हमारे लिए इसलिए एसेंशियल है कि इसकी डेफिशिएंसी स्कर्वी और पायरिया जैसी डिजीजेस कॉज करती है। पायरिया इज़ लूजनिंग ऑफ टीथ एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, स्कर्वी इज़ ब्लीडिंग ऑफ gums. Source of vitamin C is all citrus fruits, amla, green vegetables, tomato, orange, etc. Now, question 25 is पहले इसका कंटेक्स्ट है कि वुड्स ने देखा कि अल्काइल हेलाइड्स एनहाइड्रस ईथर के साथ रिएक्ट करके एल्केन विद डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बनाते हैं। इसी तरह फिटिग रिएक्शन में एराइल हेलाइड और कंबाइन करता है और डाइफिनाइल प्रोडक्ट बनता है। तो अब हमें जो पूछा गया है वो है कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड विद सोडियम। तो यहाँ पे ब्यूटेन बनेगा, 2 कार्बन का अल्काइल हेलाइड 4 कार्बन के अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह एराइल हेलाइड और अल्काइल हेलाइड को जब कंबाइन करेंगे तो अल्काइल एरीन बनेगी। अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप ज्वाइन कर जाता है। व्हाट इज़ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन? तो प्राइमरी अमीन्स जो हैं प्रिपेयर किए जा सकते हैं प्राइमरी अमाइड से इस रिएक्शन में। इसमें हम अमाइड को ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो 1 कार्बन कम हो जाता है, अमीन बनती है, साथ में जो HBr बना होता है वो KOH के साथ रिएक्ट करके KBr और वाटर बनता है, और जो 1 कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में कम होता है वो K2CO3 बनाता है। वाई इज़ मिथाइलमीन और इथाइलमीन स्ट्रॉन्गर बेस दैन अमोनिया? क्योंकि अल्काइल ग्रुप का +I इंडक्टिव इफेक्ट होता है जो इसकी इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी को बढ़ा देता है, जबकि अमोनिया में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं अटैच्ड है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्बाइलमीन रिएक्शन। सो प्राइमरी अमीन्स को जब हम क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl रिमूव होते हैं जो KOH के साथ KCl और वाटर बनाते हैं। ओवरऑल एक कार्बाइल अमीन बनता है जिसकी ऑफेंसिव स्मेल होती है, जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और साथ में बनेगा KCl एंड वाटर। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स A, B, C and D फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो इथेनोइक एसिड बनेगा, और PCl5 से रिएक्ट करने पर यहाँ पे Cl ग्रुप अटैच हो जाएगा और एसिटाइल फ्लोराइड बनेगा, दिस इज B। और डाई मिथाइल कैडमियम के साथ रिएक्ट करने पर ये यहाँ पे कीटोन बनेगा CH3CO CH3। और अमेल्गम, जिंक अमेल्गम और HCl के साथ क्लेमेंसन रिडक्शन होती है जिसमें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स लग जाते हैं और O रिमूव हो जाता है, और इस तरह से 3 कार्बन का प्रोपेन एल्केन बनेगा। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन द लेबोरेटरी work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such sample of the acid if density of solution is 1.504 grams per milliliter? तो अब molecular mass nitric acid का होगा 1 + 14 + 48 which comes out to be 63 grams, और density का फॉर्मूला होता है mass upon volume। So हमें mass दिया है 68 ग्राम्स फॉर 100 ग्राम्स और डेंसिटी दी है 1.5, तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगी 68 अपॉन 100 ग्राम्स की वॉल्यूम निकालनी हो तो 100 अपॉन 1.504 ये हमारे पास आ जाएगा इसका वॉल्यूम। और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। सो नंबर ऑफ मोल्स होता है WB अपॉन MB, और वॉल्यूम अगर V है तो उसको लीटर्स में करने के लिए 1000 से यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 68 अपॉन 63 मोलर मास इंटू 1000 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 1.504, तो ये सब सॉल्व करके हमारा आ रहा है 16.44 ग्राम मोलर सोल्यूशन। What is solubility? So solubility of a substance is the maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent. Effect of pressure on the solubility of gases in liquids can be expressed in terms of Henry's law. The solubility of a gas in a liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas above the solution. That is, more the pressure, more is the solubility. तो effect of pressure हम Henry's law से show कर सकते हैं।
गिव द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। तो क्रोमेट आयन में एक क्रोमियम 4 ऑक्सीजन्स के साथ अटैच हुआ है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, जबकि डाइक्रोमेट में 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स एक ऑक्सीजन को शेयर कर रही होती है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमेट एंड dichromate ions. What are inner transition elements? The elements of F block are called inner transition elements. Why are they so called? They are so called because the last electron enters the F subshells, which is inner to the D subshell of transition elements. While lanthanum hydroxide is a stronger base, while lutetium hydroxide is a weaker base, because of lanthanide contraction, as we move from left to right in lanthanoids, the size decreases. As a result, the bond length also decreases and it's difficult to break the bond, so its basic character decreases. That's why lanthanum hydroxide, which is placed first in the series, is a stronger base, the other one is a weaker base. What happens when potassium dichromate is heated strongly? On heating potassium dichromate strongly, we get potassium chromate, chromic oxide and oxygen. This is the reaction. That's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.